गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਲਾਅ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਗਿਵਨ ਬਾਏ ਗੋਲਡਬਰਗ ਐਂਡ ਵੇਜ ਇਨ 1867 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਐਟ ਅ ਗਿਵਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ at a given temperature the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of the reactant. mass action means कि ਅਸੀਂ कितनी quantity reactant ਦੀ ਲਈ है। it is the product of product मतलब कि ਇਹ ਇੱਕ ਅਗਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਮੋਲਰ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਮੋਲਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਏ ਹੈਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਦਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ, ठीक है, नॉट ऑन द प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव मास। एक्टिव मास मतलब कि ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਏ ਬੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। एक ਕੀ ਦੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2ab। ਨਾਓ ਦਾ ਰੇਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ k concentration square bracket means concentration of A and concentration of B. It is multiplication means product. Now what is the definition of rate constant? Rate constant definition is very important. If the molar concentration of both the reactants taken in a chemical reaction is taken as unity, अगर आप 1 ले लिए इन्हों 1 number of mole ले लिए, then rate constant becomes equal to the rate of the reaction. ठीक है, सो ये साडी कोल जिहड़ी definition हैगी। सो ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋਨੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 1 ਮੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਨੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਮੋਲਰ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਵੈਲਿਊ ਕੇ ਦੀ ਆਏਗੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਨੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਾਸਟ ਹੈ, ਸਲੋ ਆਏਗੀ ਘੱਟ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਲੋ ਹੈ। डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के दी वैल्यू डिफरेंट रिएक्शंस वास्ते डिफरेंट हो सकती है। बट एक रिएक्शन वास्ते एट पर्टिकुलर जोड़ा है अगर आप कंसनट्रेशन जी चेंज कर दिए दैन देखो इट इज़ इंडिपेंडेंट फॉर देखो फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसनट्रेशन वाई इट इज़ कॉल्ड कि कंसनट्रेशन के उपर क्यों नहीं डिपेंड करती बिकॉज इट इज़ स्पैसीफिक मीनस इट इज़ ओनली कंसिडर्ड इन केस ऑफ 1 मोलर कंसनट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स। अगर 1 मोल होएगी दैन ही असी ये कंसनट्रेशन में भावें वधा दिए भावें घटा दिए भावें जो मर्जी है बट रेट कॉन्स्टेंट उदों ही वैलिड होएगा जदों कि साडे कोल 1 मोलर कंसनट्रेशन ते सीगा। डिफरेंट रिएक्शंस वास्ते डिफरेंट होएगा। एट ए फिक्सड टेंपरेचर वैल्यू ऑफ के इज़ कॉन्स्टेंट एंड इज़ करैक्टरिस्टिक ऑफ दिस रिएक्शन हाउएवर इट चेंजिज विद टेंपरेचर नाल इहदी वैल्यू जिहड़ी है वो चेंज हो जाती है। जिद्दां मोलैरिटी जिहड़ी है क्यों चेंज हो जाती बिकॉज मोलैरिटी मोलर कंसनट्रेशन चेंजिज मोलैरिटी असी पढ़ी हुई है कि चेंजिज विद टेंपरेचर। इफ मोलैरिटी यानी कि मोलर कंसनट्रेशन मोल्स पर लीटर अगर टेंपरेचर ना चेंज होती है इट इज़ ऑल्सो स्पैसीफिक रेट कॉन्स्टेंट कैन ऑल्सो बी चेंज्ड विद द चेंज इन टेंपरेचर बिकॉज इट इज़ डायरैक्टली विद रिलेटेड विद द मोलर कंसनट्रेशन। मोलर कंसनट्रेशन अगर कॉन्स्टेंट है 1 मोलर रहेगी तां ही के दी वैल्यू कोई एग्जिस्टेंस है स्पैसीफिकली हैगी। अगर साडे कोल जिहड़ा है वो 1 मोलर कंसनट्रेशन ना होए मोलैरिटी चेंज हो जाए टेंपरेचर के नाल दैन के दी वैल्यू भी की हो जाएगी चेंज हो जाएगी। सो इसकी ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाएगी। दैन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्शन रेट कॉन्स्टेंट ये जिहड़ा आपां हुणे पढ़िया और रेट ऑफ रिएक्शन इन्हां विच असीं सेम कर लिया इन्हां नूं कि जदों 1 मोल कंसनट्रेशन हो जाएगी दैन दोनों बराबर हो जाते बट दोनों के विच फर्क की है। इट इज़ द स्पीड विद विच द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ऑब्वियसली ये की है स्पीड दसदी है कि किन्ने समय के जोड़े रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के उपर डिपेंड करते मीनस इट डिपेंड्स ऑन बोथ द इन डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। असी कर चुके हैं चीज़ एंड रेट कॉन्स्टेंट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसनट्रेशन के उपर डिपेंड नहीं करती। इट इज़ ओनली सिर्फ जी रेट कॉन्स्टेंट के बराबर होंगी है जो कि 1 मोलर कंसनट्रेशन जी होएगी। ठीक है, वैन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली नॉट कंसर्नड विद प्रोडक्ट यूनिटी होएगी।
ये इनीशियल कंसनट्रेशन के उपर डिपेंड करता है, ये कंसनट्रेशन के उपर डिपेंड ही नहीं करता। ये मोल्स पर लीटर पर टाइम है, ये की है साडे कोल, इहदे कोई भी यूनिट जिहड़े है इट्स यूनिट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रैशन होएगा उहदे उपर ही रेट कॉन्सटेंट के जिहड़े यूनिट्स आ वो डिपेंड करेंगे। नैक्सट इज़ द रेट लॉ एक्सप्रैशन। सब तो पहला असीं रेट लॉ पढ़ांगे कि हुंदा। रेट लॉ एक्सप्रैशन बात करांगे। एक्सप्रैशन मतलब कि इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट असी रेट ऑफ रिएक्शन किद्दां लिखना, बट ये असी देखना कि पहला रेट लॉ की है, एक्सप्रैस किद्दां करना असी रिएक्शन नूं या रेट नूं, वो अलग चीज़ है। तो पहला आपां देखांगे कि रेट लॉ क्या है। हाँ जी, नैक्सट इज फस्ट आपां करना रेट लॉ की है। द मैथमैटिकल एक्सप्रैशन इट इज़ ऑल्सो रेट लॉ बेसिकली ये असीं पढ़ लिया होया, बट ये साडे कोल मैथमैटिक एक्सप्रैशन करना विच डोनेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओनली with each term raised to the power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reactant species in a balanced chemical equation। ये असीं पहला सब तो ये लिखना कि असीं एक इक्वेशन लिख ली, इक्वेशन दे विच असीं रिएक्टेंट लिख ले, प्रोडक्ट लिख ले, दोनों नूं असीं बैलेंस करता। मतलब कि जिन्ने भी रिएक्टेंट दे विच नंबर ऑफ मॉलीक्यूल सीगे, नंबर ऑफ एटम्स है, उन्ने असीं प्रोडक्ट दे नंबर ऑफ एटम्स दे नाल जिहड़े है वो बराबर कर ले, बैलेंस कर लिया इक्वेशन नूं। उस तो बाद असीं रेट लॉ लिखांगे। रेट लॉ मतलब रेट ऑफ रिएक्शन लिखांगे। रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ मास एक्शन ओनली डिपेंड्स अपॉन द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। असीं करांगे, हाँ जी देखिए, द मैथमैटिकल एक्सप्रैशन विच डोनेट्स द रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसनट्रेशन। जिहड़ी असीं इत्थे कीती है, कोई भी रिएक्शन असीं कंसीडर कर लीए, उहदे विच असीं इत्थे देखदे हां साडे कोल दिस इज़ 2NO2 प्लस F2 गिव्स यू 2NO2F। ठीक है, ये अकॉर्डिंगली रेट लॉ क्या होएगा, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन, दो रिएक्टेंट सीगे, एक NO2 एक F2 हो गया। अच्छा, असीं देखते हैं हुण एक होर रिएक्शन N2O5 की मिल रहा साडे कोल NO2 प्लस O2। ये अकॉर्डिंगली रेट लॉ अगर असीं लिखना होए, सिंपल रेट लॉ, इट डिपेंड्स ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ओनली, डज नॉट मीन विद द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट टेकन। ये उपर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर साडे कोल असीं इत्थे स्टोकियोमेट्रिक लिख लिया, चलो हुण असीं एक्सप्रैशन वाल आ रहे, मतलब दिस इज़ रेट लॉ एक्सप्रैशन। ना असीं रेट लॉ इत्थों तक ही है कि किन्ने रिएक्टेंट इनवॉल्व है, दिस इज़ ओनली रेट लॉ, उन्हां दी कंसनट्रेशन देख लीए। ठीक है, नाउ molar concentration of the reaction with each term expressed to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation। हुण इहदे विच असीं एक इक्वेशन लिखी है A और इहदे अकॉर्डिंगली अगर आप रेट लिखिए तो इहदे की आ जाएगा साडे कोल, इत्थे आपां A लिखांगे उपर, इत्थे B और इत्थे की लिखांगे C। ठीक है, हुण असीं कह रहे हैं कि इट मे और मे नॉट बी, यानी कि असीं इत्थे ए जिहड़ा भी वो लिख सकते हैं। मीनस कि अगर इत्थे असीं PQR मैंशन कर रहे हैं, P मे और मे नॉट बी इक्वल टू, मे और मे नॉट बी इक्वल टू A, और Q मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल टू B, और असीं की लिखांगे इहदे विच जिहड़ा R है इक्वल और मे नॉट बी इक्वल टू, इक्वल और मे नॉट बी इक्वल टू साडे कोल C। ठीक है, एक्सप्रैशन के अकॉर्डिंग तो की आएगा, इत्थे A आना चाहिए सीगा, इत्थे B आना चाहिए सी, इत्थे C आना चाहिए सी। बट अकॉर्डिंग टू गिवन रिएक्शन कंडीशनस ये ज़रूरी नहीं है कि जिन्ने नंबर ऑफ मोल्स तुसीं A दे लए, जिन्ने B दे लए, जिन्ने C दे लए, वो सारे ही रिएक्शन च इनवॉल्व है। नो, सो हियर वी कैन राइट P, Q एंड R। मे दीज P, Q एंड R may or may not be equal to A, B और C। So this is your rate law equation or expression। means mathematical expression है which denotes the rate of the reaction of molar concentration of the reactants with each term raised to some power। कुछ powers है गया, but these powers may or may not equal to their stoichiometric। ये बराबर भी हो सकती हैं और बराबर नहीं भी हो सकती हैं, ये अलग वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। हो सकता है जो रेट आप 5 मिनट बाद डिटरमिन किया, इंस्टेंटेनियस रेट असीं अगर आप देखिए 5 मिनट बाद डिपेंड किया, तो वो ए दे सारे मॉलीक्यूल नहीं रिएक्ट होए, बी दे सारे नहीं होए, सी दे नहीं सारे होए। हो सकता कि ए दे सिर्फ पी जिहड़े रिएक्ट होए होण, बी दे सिर्फ क्यू रिएक्ट होए होण, सी दे सिर्फ आर रिएक्ट होए होण। सो असीं बैलेंस्ड कैमिकल इक्वेशन नूं नहीं देखना हैगा, असीं रेट एक्सप्रैशन नूं देखना ओनली। नाउ नैक्सट इज़ द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ द order of reaction, the definition is sum of powers to which concentration terms are raised in rate law expression to express the observed rate of the reaction। suppose करो कि तुहाडे कोल कोई रिएक्शन चल रही है,
रिएक्शन चल रही है 10 मिनट बाद तुसी उहदा रेट रिएक्शन जिहड़ा वो मेयर किया। रेट ऑफ रिएक्शन मेयर करन तो बाद तुहानूं पता लग्या कि ए दे जिहड़े पी मॉलीक्यूल रिएक्ट कर रहे सी, बी दे क्यू कर रहे सी, या सी दे सिर्फ आर ई मॉलीक्यूल जिहड़े सपोज कि रिएक्ट कर रहे सीगे। ठीक है, हुण ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ रेट एक्सप्रैशन लिखना रेट एक्सप्रैशन किस हिसाब नाल आएगा, साडे कोल इत्थे पी आउणगे, क्यू आउणगे, सी आफ्टर 10 मिनट्स इत्थे आपां लिखांगे आफ्टर 10 मिनट्स बाद जिहड़ी आ वो इन्ना रेट एक्सप्रैशन हो गया। नाउ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जिहड़ा तुसीं उस समय 'च 10 मिनट बाद जिहड़ा रेट एक्सप्रैशन लिखिया सीगा पी क्यू आर, उहदे विच जिहड़ी पी टर्म है मतलब कंसनट्रेशन टर्म दे पी किन्ने सीगे, क्यू किन्ने सीगे, आर किन्ने सी, किन्ने नंबर ऑफ मोल्स ए दे सी, बी दे किन्ने नंबर ऑफ मोल सीगे, सी दे किन्ने नंबर ऑफ मोल से, उन्होंने आपां प्लस करांगे एंड दैट बिकम्स द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मतलब ऑर्डर मीनस ऑर्डर की काम करते हुए उस समय के अंदर बेटा किन्ने नंबर ऑफ मॉल्स जिहड़े हैगे आ ए बी और सी दे प्रेजेंट सीगे इन अ गिवन सैट ऑफ टाइम, एक रिएक्शन दे विच जिहड़े किन्ने प्रेजेंट सीगे। ओके, सो दिस इज़ द सम मतलब प्लस करना ऑफ द पावर्स टू विच द कंसनट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन रेट लॉ एक्सप्रैशन। दिस इज़ द रेट लॉ एक्सप्रैशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इंस्टेंटेनियस डी मतलब डी ओवर डी टी एट पर्टिकुलर टाइम मतलब आफ्टर 10 मिनट्स या 5 मिनट्स बाद ये जिहड़े हैगे साडे कोल रेट एक्सप्रैशन सीगा, इन्हां दीयां पावर्स जिन्ने जिन्ने नंबर ऑफ मॉलीक्यूल्स उस समय ते रिएक्ट होए होणगे उन्हां नूं असीं प्लस कर दांगे। प्लस करन तो बाद जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल तुहाडी बुक ते दित्तियां जिद्दां हुणे ही N2O5 दे विच साडे कोल की आ NO2 रेट लॉ अगर आपां देखीए तो सिंपल इहदे उपर डिपेंड करेगा। ठीक है, नैक्सट इहदे विच साडे कोल सिंपल रेट लॉ लिखे हुए आ सारिਆਂ दे विच। नाउ एक्सप्रैशन फस्ट ऑर्डर का की अगर एको ही रिएक्टेंट के उपर डिपेंड करे रेट एक्सप्रैशन के साडे कोल सिर्फ ये हुणे रेट आपां लिख लिया, सानू पता नहीं है किन्ने टाइम बाद फाइंड आउट किया, किसी भी टाइम बाद किया होए मतलब इंस्टेंटेनियस होगा। ये हुण कंसनट्रेशन टर्म 1 है, तो दिस इज वर्स फस्ट ऑर्डर रिएक्शन। हुण इस केस दे विच की है साडे कोल इहदे विच भी N2O5 है, उपर कुछ भी मैंशन नहीं है, सानू नहीं पता इहदे किन्ने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट करते हैं। सो ये की है साडे कोल फस्ट ऑर्डर। इहदे विच भी डिकम्पोजिशन दे विच भी कोई रिएक्टेंट है फस्ट ऑर्डर है, ये भी फस्ट ऑर्डर है। इहदे विच साडे कोल दो इहदा अगर आप एक्सप्रैशन लिखे इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट नंबर ऑफ मॉलीक्यूल्स रिएक्टिंग इन अ गिवन रिएक्शन बिकम्स द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। नो, ये रेट लॉ एक्सप्रैशन तो पता लगेगा कि किन्ने टाइम बाद रिएक्शन का रेट फाइंड आउट किया। अगर शुरू के ही कर लेंगे तो साडे कोल 2 मोल कभी भी रिएक्ट नहीं हुए होने। सो ये नहीं आना सीगा। सो ये पूरी रिएक्शन इट मीनस कि पूरी रिएक्शन खत्म होने तो बाद रेट एक्सप्रैशन जो फाइंड आउट किया गया। सो ये 2 है तो सैकेंड ऑर्डर हो गया, ये 2 ये मॉलीक्यूल है, एक ये रेट लॉ एक्सप्रैशन के असीं देखिए ये 3 है। फ्रैक्शनल भी हो सकता है। देखो ये हम देखो ये साडे कोल जिन्ने भी टाइम बाद जी रिएक्शन नोट की गई है वो सिर्फ 3/2 मॉलीक्यूल ही जोड़े एसिटैल्डिहाइड के जोड़े यूज़ हुए थे। सो ऑर्डर की हो जाएगा 1.5, 3/2 ये की हो जाएगा 1.5। हुण इस केस के देखो H2 प्लस Br2 जो इन्होंने रिएक्शन का रेट फाइंड आउट किया उदों हाइड्रोजन पूरा कंज्यूम हो चुका सी तो जो Br2 है वो सिर्फ हाफ ही कंज्यूम होया सीगा। ठीक है, अद्धा ही जो यूज़ होया सीगा। सो रेट क्या आ जाएगा इहदा 1 ऑर्डर क्या आ जाएगा इहदा 1 + 1.5 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, उस तो बाद CO फ्रैक्शनल भी हो सकता, पॉइंट्स भी हो सकता। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर के इदा होंदा कि साडे कोल कभी भी कुछ इदा दी भी रिएक्शन होंदियां कि जिहदे उत्ते जिहड़ा रेट एक्सप्रैशन है वो रिएक्टेंट के उपर डिपेंड ही नहीं करता, रिएक्टेंट के उपर नहीं डिपेंड करता। तो इत्थे जीरो आ जाएगा कि रिएक्टेंट के उपर रेट डिपेंड नहीं कर रहा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हैगा। सो इदा भी हो जाता इन्हां केस के विच अगर जीरो किसी की वैल्यू हो जाए तो 1 हो जाएगा, तो इट मीनस इट इज़ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो दिस इज़ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट बिकम्स इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट। ये किस तरीके दे नाल असीं निकालने हैगे ये असीं देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेट कॉन्स्टेंट यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर वास्ते सब तो पहला पर रिएक्शन वास्ते देखते हैं। सो असी कोई रिएक्टेंट ले लेने ए चेंजिस टू प्रोडक्ट। ठीक है, ये रिएक्शन असी देख ली। ये अगर आप रेट एक्सप्रैशन लिखांगे तो एक आ जाएगा साडे कोल के इज़ द रेट कॉन्स्टेंट जिहदे असी यूनिट देखने। ठीक है, ए इट इज़ अ जीरो ऑर्डर मीनस रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन रेट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट्स के कंसनट्रेशन के उपर डिपेंड नहीं कर रहा।
सो रेट के इक्वल आ जाएगा, रेट इज़ इक्वल्स टू के बिकॉज इट बिकम्स इक्वल्स टू 1, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, सो रेट के यूनिट की होंगे हमने असी पढ़े मोल पर लीटर पर सैकेंड। ठीक है, तो के दे यूनिट की होंगे इस केस के इक्वल्स टू मोल पर लीटर फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन वास्ते। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ऑर्डर देखिए, फर्स्ट ऑर्डर दे विच अगर आप यही एक्सप्रैशन देख लें, सो इट इज़ इक्वल्स टू रेट इज़ इक्वल्स टू के ए सिंपल वन बिकॉज इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक ही जोड़ा नंबर ऑफ मोल है, एक ही जोड़ा मॉलिक्यूल है उपर डिपेंड कर रहा है। सो ये आ जाएगा मोल पर लीटर पर सैकेंड। सो के की आ जाएगा साढ़े को मोल पर लीटर। ठीक है, सो के इनू अगर आप कट दिए, इनू असी कट देंगे, लीटर भी कटिया जाएगा। सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के दे यूनिट की होंगे पर सैकेंड। अच्छा, फॉर इस तरीके ना सैकेंड ऑर्डर वास्ते देख लें। सैकेंड ऑर्डर की हो जाएगा रेट इज़ इक्वल्स टू के, सुपोज करो कि ये दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं। सो क्या आ जाएगा साढ़े कोल मोल पर लीटर पर सैकेंड आ जाएगा। के दे असी यूनिट कढ़ने हैं, ये क्या आ जाएगा मोल पर लीटर का स्क्वायर आ जाएगा। सो एक साढ़े कोल कट गया, कि आ गया इधर पर सैकेंड इज़ इक्वल्स टू के मोल पर लीटर कट गया, इधर आ गया। ठीक है, सो के क्या इक्वल हो गया मोल इनवर्स लीटर एंड सैकेंड। ठीक है, ये आ जाएगा साढ़े कोल इनवर्स मोल इनवर्स लीटर एंड सैकेंड। ये साढ़े कोल के सैकेंड ऑर्डर के जोड़े यूनिट्स हो गए। इस तरीके नाल थर्ड दे फ्रैक्शनल दे जिदा जिदा भी है उस जोड़ा फाइंड आउट कर सकते हैं। नैक्सट बच्चे जो है वो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन है। मॉलिक्यूलैरिटी कुछ नहीं है, सिंपल जिन्ने नंबर ऑफ मोल्स तुहानूं रेट एक्सप्रैशन दे विच दिख रहे हैं रिएक्ट करते हुए, मीनस ये साढ़े नॉट इन द रेट एक्सप्रैशन, इन द रिएक्शन एक बैलेंस च तुसीं रिएक्शन बैलेंस की, रिएक्शन बैलेंस करते हुए तुहानूं जो जिन्ने भी नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੋਲੀਕੂਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕੂਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕੂਲ ਹੈ, ਯੂਨੀ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੈ, ਬਾਈ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਬਾਈ ਮੋਲੀਕੂਲਰ, ਦੋ ਤੇ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਟਰਾਈ ਮੋਲੀਕੂਲਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨॉट ਇਨ ਕੰਸਰਨ ਵਿਦ ਦ ਰੇਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸਡ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਮੋਲੀਕੂਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ।